السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ کانگریس کے نومنتخب صدر ملکارجن کھڑگے نے آج چہارشنبے کی صبح عہدے کا چارج سنبھالنے سے قبل مہاتما گاندھی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے قومی دارالحکومت کے راج گھاٹ کا دورہ کیا۔ کھڑگے نے سابق وزرائے اعظم اندرا گاندھی کو شکتی استھل اور جواہر لال نہرو کو قومی دارالحکومت کے شانتی وان میں بھی خراج عقیدت پیش کیا۔ تجربہ کار رہنما بعد میں یہاں کانگریس ہیڈ کوارٹر میں منعقدہ ایک تقریب میں آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے صدر کا عہدہ سنبھالے ہیں۔ تقریب میں ملکارجن کھڑگے کو سونیا گاندھی انتخاب کا سرٹیفکیٹ دیے ہیں۔ ملکارجن کھڑگے 24 سالوں میں پہلے کانگریس صدر بنے ہیں جن کا تعلق نہرو گاندھی خاندان سے نہیں ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے گجراتی نئے سال بستو وراس کے موقع پر گجرات کے لوگوں کو مبارکباد پیش کی۔ گجراتی نیا سال کارتک کے مہینے میں منایا جاتا ہے۔ تمام گجراتیوں کو نئے سال کی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے مودی نے ٹویٹ کیا، آج سے شروع ہونے والا نیا سال آپ کی زندگی کو روشن کرے اور آپ کو ترقی کی راہ پر گامزن کرے۔ دیوالی کے 2 دن بعد بھی دہلی کو دھوئیں کی چادر میں لپیٹے دیکھا گیا کیونکہ ہوا کا معیار انتہائی خراب زمرے میں پہنچ چکا ہے۔ ہوا کے معیار کا مجموعی انڈیکس آج چہارشنبے کی صبح 323 ریکارڈ کیا گیا۔ عوام کو ایک بار پھر چہرے کے ماسک کا استعمال کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ سسٹم آف ایئر کوالٹی اینڈ ویدر فار کاسٹنگ اینڈ ریسرچ کے مطابق چہارشنبے کو دہلی کے مجموعی علاقے میں 323 ایئر کوالٹی انڈیکس پر انتہائی خراب زمرے میں درج کیا گیا۔ تاہم لودھی روڈ میں ایئر کوالٹی انڈیکس سب سے خراب زمرے میں ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ملک میں تیزی سے پھیل رہے نفرت اور فرقہ وارانہ منافرت کے ماحول پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے دہلی کے سابق لیفٹیننٹ گورنر نجیب جنگ نے ایک ٹی وی چینل سے گفتگو کے دوران کہا کہ یہ وہ ملک نہیں ہے جس میں پیدا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ملک کو کیا بناتے جا رہے ہیں۔ نجیب جنگ نے نفرت پھیلانے والوں سے سوال کیا کہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے سے کس کا بھلا ہوگا؟ نسل کشی، آبرو ریزی اور گولی مارنے کی بات کرنا، کیا یہ انسانیت اور مہذب سماج کی زبان ہے؟ انہوں نے کہا کہ اب سپریم کورٹ کی ہدایت کے بعد پولیس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کارروائی کریں۔ آسام کے ضلع گولپاڑہ میں خانگی میاں میوزیم کے قیام پر تنازع پیدا ہونے اور چیف منسٹر ہیمنتا بشوا سرما کی جانب سے اس کی فنڈنگ پر سوالات اٹھائے جانے کے بعد ضلع انتظامیہ نے آج اسے مہر بند کر دیا۔ اتوار کے روز ضلع کے دیپکر بھٹا علاقے میں اس میوزیم کا افتتاح انجام دیا گیا تھا۔ میاں میوزیم کے دروازے پر چسپاں کی گئی لکھی پور ریونیو سرکل کی ایک نوٹس میں کہا گیا کہ ڈی سی کی ہدایت کے مطابق مہر علی ولد سومیش علی کے اس پی میں جی مکان کو تاحکم ثانی بند کیا جاتا ہے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ پولیس میاں میوزیم کے قیام کے لیے فنڈز کی فراہمی کے ذرائع کی تحقیقات شروع کرے گی۔ چیف منسٹر نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ میاں میوزیم قائم کرنے والوں کو حکومت کے سوالات کا جواب دینا ہوگا، جس میں ناکامی پر ان کے خلاف قانونی کارروائی شروع کی جائے گی۔ چیف منسٹر نے یہ بھی کہا کہ وہ ہمیشہ سے ہی کہتے رہے ہیں کہ میاں اسکولز اور میاں شاعری کا ابھرنا سخت تشویشناک مسائل ہے۔ بسوا شرما نے کہا کہ ایسے واقعات مقامی سماج کے لیے اچھی علامت نہیں ہیں۔ رام مندر جنوری 2024 میں بھکتوں کے لیے کھول دیا جائے گا۔ رام جنم بھومی تیرتھ شیتر ٹرسٹ نے یہ بات کہا کہ 50% تعمیراتی کام مکمل ہو چکے ہیں۔ جنوری 2024 کی مکر سنکرانتی پر مندر بھکتوں کے لیے کھولا جائے گا۔ ٹرسٹ کے جنرل سیکریٹری چمپت رائے نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ سال دسمبر تک مندر کی زیریں منزل یعنی گراؤنڈ فلور مکمل ہو جائے گی اور 14 جنوری 2024 تک لارڈ رام کی مورتیاں رکھ دی جائے گی۔ چمپت رائے نے کہا کہ رام مندر کی تعمیر پر 1800 کروڑ روپے خرچ ہو رہے ہیں۔ گجرات کے شہر وڈودرا میں دیوالی کی رات فرقہ وارانہ جھڑپیں پیش آئی ہے۔ منگل کے دن تک پولیس نے کم از کم 12 فسادیوں کو پکڑا۔ مزید کی شناخت کی جا رہی ہے۔ پیر کی رات شہر کے پانی گیٹ علاقے میں جھڑپیں پیش آئی۔ مقامی میڈیا سے خطاب میں وڈودرا کے ڈپٹی کمشنر پولیس پشپال جگنیا نے کہا کہ تشدد کی اصل وجہ ابھی معلوم نہ ہو سکی۔ پولیس کو واقعے کی جیسے ہی جانکاری ملی، شہر کے مختلف علاقوں سے وہاں فورس بھیج دی گئی اور صورتحال پر قابو پا لیا گیا۔ ایک مکان کی چھت سے پولیس پر پیٹرول بم پھینکے گئے۔ اس سلسلے میں ایک شخص کو حراست میں لیا گیا۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ جھڑپ شروع ہونے سے قبل اسٹریٹ لائٹس بند کر دی گئی تھی، جس کے بعد فسادیوں نے ایک دوسرے پر سنگباری کی۔ مقامی لوگوں کے بموجب ایک کالج کے قریب پٹاخے جلانے پر جھگڑا پیش آیا، جس کے بعد جھڑپیں شروع ہوئی۔ پی ٹی آئی کے بموجب وڈودرا کے ایک علاقے میں پٹاخے جلانے پر 2 فرقوں میں جھڑپ پیش آئی۔ پولیس نے دونوں فرقوں کے 19 افراد کو گرفتار کر لیا۔ علم نجوم سے دلچسپی رکھنے والے بے شمار پرجوش افراد اور بچوں نے منگل کو جزوی سورج گرہن کا مشاہدہ کیا۔ ملک کے کئی حصوں میں سورج گرہن دیکھا گیا۔
श्री नगर में सबसे ज्यादा देर तक सूरज ग्रहण का मुशाहिदा किया जा सका। दिल्ली में ग्रहण का आगाज शाम 4:29 पर हुआ। सूरज ग्रहण इस वक्त वाक़ होता है जब चांद जमीन और सूरज के दरमियान हायल होता है और तीनों एक सफ में आ जाते हैं। जज़वी सूरज ग्रहण का वक़्अ इस वक्त होता है जब चांद जज़वी तौर पर सूरज को छुपाता है। ज़्यादातर मुकामात पर शाम 4:29 को ग्रहण शुरू हुआ और शाम 5:42 पर ख़त्म हो गया। जिन शहरों में 1 घंटे से ज़्यादा देर तक ग्रहण देखा गया, इनमें द्वारका, नई दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, पुणे, जयपुर, इंदौर, ठाणे, भोपाल, लुधियाना, चंडीगढ़, उज्जैन, मथुरा, गांधीनगर और पानाजी शामिल हैं। यूरोप और मशरक़ी सतह के अलावा अफ्रीका और बहर-ए-कानूस के खित्ते में सूरज ग्रहण देखा गया। महाराष्ट्र में किसानों को फौरी राहत देने के उद्धव ठाकरे ग्रुप के मुतालबे के 2 दिन बाद वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने बताया कि उन्होंने इन किसानों को मुआवजा देने के लिए अहकाम जारी कर दिए हैं जिनकी फसलें भारी बारिश की वजह से तबाह हो गई। शिंदे के मुताबिक उन्होंने काम को तेज रफ्तारी से मुकम्मल करने और फसलों को नुकसान के तखमीने का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायतें जारी की है। वज़ीर आला ने यकीन दहानी भी कराई कि मुतासरा किसानों को मुआवजा फराहम किया जाएगा। रियासत कर्नाटक के शिमोगा इलाके में फिरकाराना कशीदगी पैदा हो गई। यहाँ एक शख्स पर 3 नामालूम अफराद के मुबैना हमले के बाद इलाके में कशीदगी फैल गई है और पुलिस की इजाफी फोर्स को तैनात कर दिया गया है। प्रकाश नामी शख्स पर यह हमला पीर के रात हुआ था। पुलिस के मुताबिक हमलावर बाइक पर सवार थे। उन्होंने प्रकाश को निशाना बनाते हुए RSS और हिंदुत्व कारकुनों के खिलाफ नारेबाजी भी की। मामूली जख्मी होने के बाद प्रकाश अस्पताल में जेर इलाज है, मगर मामले ने फिरकाराना रंग ले लिया है। मुतासरा शख्स का दावा है कि इसकी हमलावरों से कोई जाती दुश्मनी नहीं है। इसके मुताबिक हमलावर बाइक पर आए और उन्होंने अचानक पीछे से हमला कर दिया। इसके बाद उन्होंने पत्थर और दीगर चीज़ों से मुझे ज़दोकोब किया और RSS और समाजी कारकुनान के ताल्लुक से बुरा भला कहा। शिमोगा के SPG के मथन कुमार ने बताया कि हालात काबू में हैं। कांग्रेस क़याद शशि थरूर ने कहा कि हिंदुस्तानी निजात ऋषि सुनक के बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बनने में हिंदुस्तान के लिए कुछ सबक नजर आता है। उन्होंने सवाल किया कि क्या हिंदुस्तान में कोई ऐसा शख्स वज़ीर-ए-आज़म बन सकता है जो ना हिंदू हो, ना सिख हो, ना बुद्ध हो और ना जैन हो। उन्होंने नुमाया अक़लियतों को बाइख्तियार बनाने की ज़रूरत पर जोर देते हुए ये बात कही। क़ब्ल ट्विटर पर नुमाया अक़लियत की बहस पर इन्हें निशाना तनकीद बनाया जा रहा है। लोगों ने इनके साथी कांग्रेस क़ायद मनमोहन सिंह का हवाला दिया था, जो तकरीबन 10 साल तक वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर फायज रहे थे। इन्हें यह भी बताया गया था कि मुसलमान और सिख अफराद सदर जमहूरिया के ओहदे पर फायज रह चुके हैं, जो मुल्क का दस्तूरी सरबराह होता है, अगरचे कि यह हिंदुस्तान में महज एक रस्मी ओहदा है। शशि थरूर ने NDTV से बात करते हुए कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह यकीनन नुमाया अक़लियत से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन बेशतर हिंदू सिखों को अपने से अलग तस्वुर नहीं करते। उन्होंने कहा कि क्या हम अपनी इस अक्सरियती सियासत में, जिसमें BJP का बड़ा हाथ है, किसी ऐसे दिन का तस्वुर कर सकते हैं जब कोई ऐसा शख्स हमारी हुकूमत का सरबराह यानी वज़ीर-ए-आज़म बने जो ना हिंदू हो, ना जैन हो, ना सिख हो और ना बुद्ध हो। उन्होंने जोर देकर कहा कि हिंदुत्व का नज़रिया हिंदुस्तानी बरे-सग़ीर के तमाम मज़ाहिब को मुमासिल तस्वुर करता है। इन्हें हिंदुस्तानी मज़ाहिब तस्वुर किया जाता है, लेकिन हिंदुत्व के मानने वाले दूसरों को इसी अंदाज में नहीं देखते। क्या आप तस्वुर कर सकते हैं कि किसी ईसाई या किसी मुसलमान शख्स को जो खुलकर अपने अक़ीदे पर अमल करता हो, BJP हिंदुस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनाएगी? हिंदुस्तान में हुक्मरान BJP जो हिंदुत्व के नजरिए पर कारबंद है, इसका कोई भी मुस्लिम रुकने पार्लियामेंट नहीं है। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा ने जोर देकर कहा कि मुल्क का दहशतगर्दी से निमटने में अहम किरदार है। वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने सेनेगल में डाकार फोरम फॉर पीस एंड सिक्योरिटी से खिताब में कहा कि हम दहशतगर्दी से निमटने और इसे जड़ों से ख़त्म करने की तमाम कोशिशों की हिमायत करते हैं। उन्होंने वाज़ेह कहा कि दहशतगर्दी बैनुल-अक़वामी समंदरी रास्तों और आलमी मईशत के लिए खतरा है। तेलंगाना के असेंबली हल्के मोंगुड़ के ज़मनी इंतखाब में किसी भी जमात की कामयाबी या शिकस्त का दारोमदार हैदराबाद पर है, क्योंकि हल्के असेंबली हल्का मोंगुड़ के 25,000 से ज़्यादा राय दहिंदे बच्चों की तालीम, रोज़गार या किसी और वजह से ग्रेटर हैदराबाद में क़याम किए हुए हैं। एक गाँव के 200 से ज़्यादा अफराद शहर में मुक़ीम हैं। सबसे ज़्यादा असेंबली हल्के LB नगर में 8,500 से ज़्यादा वोटर्स मौजूद हैं। TRS पार्टी ने कितने राय दहिंदे कहाँ मुक़ीम हैं, 1 माह कबल ही इसका ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है और शहर की नुमाइंदगी करने वाले चंद अरकान असेंबली के हवाले करते हुए इन्हें खुसूसी जिम्मेदारियां सौंपी गई है। राय दही के दिन इन राय दहिंदों को मोंगुड़ मुंतकिल करने की निगरानी KTR कर रहे हैं। असेंबली हल्के मोंगुड़ तेलंगाना के सदर मुकाम हैदराबाद से करीब होने के बावजूद तौक़े के मुताबिक तरक्की नहीं कर पाया है, जिसकी वजह से हज़ारों लोग रोज़गार के लिए हैदराबाद मुंतकिल हुए हैं।
बच्चों की मियारी तालीम के लिए वालिदैन हैदराबाद में रहकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। असेंबली हल्के मोंगुड़ में जुमला वोटों की तादाद 2,40,000 है। इनमें 15 से 17% राय दहिंदे दूसरे मुकामात पर रहते हैं। ग्रेटर हैदराबाद में 25,000 से ज्यादा राय दहिंदे क़याम पजीर हैं। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव ने मोंगुड़ ज़मनी इंतखाबात पे टीआरएस की इंतखाबी मुहिम पर इत्मीनान का इजहार किया और मुहिम के आखिरी दिनों में राय दहिंदों से राब्ते की मुहिम में तेजी पैदा करने का मशवरा दिया। दीपावली त्यौहार के बावजूद रियासती वज़रा और अवामी नुमाइंदों ने मोंगुड़ में इंतखाबी मुहिम को जारी रखा। चीफ मिनिस्टर हर मंडल में मसरूफ रियासती वज़रा और अरकान असेंबली व कौंसिल की मुहिम पर शख्सी तौर पर नजर रखे हुए हैं और रोजाना की असास पर रिपोर्ट तलब कर रहे हैं। बहुत से वज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आला ने मुहिम में मसरूफ कायदीन से रब्त कायम करते हुए न सिर्फ दीपावली की मुबारकबाद पेश की बल्कि मुहिम के बारे में तफसीलात हासिल की। चीफ मिनिस्टर की इंतखाबी मुहिम में शिरकत के प्रोग्राम को खतियत दी जा रही है। बीजेपी के मुअत्तल रुकन असेंबली राजा सिंह के खिलाफ तादीबी कार्रवाई का अनकरीब इख्तिताम हो सकता है। बहुत से वज़राए के मुताबिक बीजेपी आला कमान ने मुअत्तली और विजयनुमाई नोटिस पर राजा सिंह के जवाब का जायजा लेते हुए इनकी मुअत्तली खत्म करने का फैसला कर लिया है। इस बारे में जल्द ही ऐलान किए जाने की उम्मीद है। वज़ीर के हैदराबाद में कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के शो की मुखालिफत में राजा सिंह ने वीडियो जारी किया था जिसमें गुस्ताखाना रिमार्क्स किए गए थे। राजा सिंह के बयान पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पीडी एक्ट के तहत जेल भेज दिया। मुसलमानों की नाराजगी को देखते हुए बीजेपी ने राजा सिंह को मुअत्तल करते हुए विजयनुमाई नोटिस का जवाब देने के लिए 10 दिन की मोहलत दी थी। जेल में होने के सबब राजा सिंह ने जवाब के लिए वक्त मांगा और अपना जवाब रवाना किया जिसमें दावा किया गया कि इसने किसी भी मजहबी शख्सियत के खिलाफ बयान नहीं दिया है। इसका गुस्सा सिर्फ मुनव्वर फारूकी पर था, तमाम मुसलमानों पर नहीं। इसके बयान का जायजा लेने के बाद बीजेपी मलून राजा सिंह की मुअत्तली बर्खास्त करने का कवी इम्कान है। ग्रेटर हैदराबाद में जारिया साल सितंबर तक 50,000 से ज्यादा नए रिहायशी मकानात का रजिस्ट्रेशन किया गया है जिसमें 10,000 मकानात नानकरामगुड़ा, गच्चीबोली और शेरलिंगमपल्ली इलाके के हैं। अहदेदारों के मुताबिक इन इलाकों में मजीद 15,000 मकानात ज़ेर तामीर हैं। जारिया साल के अख्तिताम तक मजीद 20 से 25,000 मकानात का रजिस्ट्रेशन होने का इम्कान है। फ्लैट्स, खूबसूरत विल्लास के अलावा मुख्तलिफ रियल इस्टेट कंपनियां आउटर रिंग रोड के अतराफ वेंचर्स कायम कर रहे हैं। रियासती हुकूमत की जानिब से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत इन कंपनियों को रियायतें भी दी जा रही है। रियल इस्टेट में सरमायाकारी के हैदराबाद में काफ़ी मौके हैं। रिहायशी इमारतों के अलावा तिजारती मकासद की तकमील के लिए भी कई इमारतों की तामीर की जा रही है। तकरीबन 40 बड़ी इमारतें जिनको अंग्रेजी में स्कैपर्स कहा जाता है, इसकी तामीर भी शहर के पॉश इलाकों में तकमीली मराहिल में है। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के सदर नशीन और अरकान की जानिब से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शाहनवाज कासिम की खिदमत हुकूमत को वापस कर दी गई है, लेकिन इसके बावजूद शाहनवाज कासिम इंचार्ज CEO की जायद जिम्मेदारी माइनॉरिटी डायरेक्टर के दफ्तर वाक़ एबिड से अंजाम दे रहे हैं। वो रोज़ाना फाइल तलब करते हुए इनका जायजा ले रहे हैं। शाहनवाज कासिम का कहना है कि हुकूमत की तरफ से इन्हें कोई भी अहकाम मौसूल नहीं हुआ है। बोर्ड का आइंदा इजलास 29 अक्टूबर को तलब किया गया है। गुज़िश्ता इजलास में शाहनवाज कासिम की जगह ख्वाजा मोइनुद्दीन को दूसरे CEO के तकर्रुर तक इंचार्ज बनाया गया था। आला अहदेदारों की सरदर्निश के बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन ने जायजा नहीं लिया। बोर्ड के सदर नशीन और अरकान शाहनवाज कासिम को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि बोर्ड में काफ़ी खामियां पाई जा रही है। इसके बावजूद शाहनवाज कासिम अपनी खिदमात को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। वक्फ बोर्ड में जारी तनाज़े की यकसुई के लिए सेक्रेटरी अखिलती बहबूद और मुतालिका वजीर को हरकत में आने की ज़रूरत है क्योंकि बोर्ड के चेयरमैन और खुद साख्ता रिपोर्टर्स और वहाँ मौजूद अरकान की जानिब से हुकूमत की जानिब से मुंतखब करदा CEO के खिलाफ होने की वजह से वक्फ बोर्ड के काम मुकम्मल ठप हो चुके हैं। मुसलसिल तनाज़ात की वजह से वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी पर असर पड़ रहा है। गुज़िश्ता कई माह से बोर्ड की सरगर्मियाँ ठप हो गई है। मुलाजमीन में अब भी उलझन पैदा हो गई है। पिछले 6 महीनों से वक्फ बोर्ड के सदर नशीन वक्फ के कामों में तवज्जो देने से कासिर है, जिसके पीछे इनके ज़ाती वजूहात है। तेलुगु और हिंदी की मशहूर फिल्मों टाइगर और गब्बर में नाश का इलाज करने के मनाजिर दिखाए गए थे। इसी तरह का एक वाक़या शहर हैदराबाद में पेश आया। शहर के इलाके मलकपेट में वाक़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल में लाश का इलाज करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए मुतवफ़्फ़ी लड़की के रिश्तेदारों ने आज एहतजाज दर्ज करवाया। एलबी नगर से ताल्लुक़ रखने वाले सत्यानारायण रेड्डी की बेटी 20 साल रमिया को जो डेंगू से मुतासिर हो गई थी, 12 अक्टूबर को कॉरपोरेट हॉस्पिटल में शरीक किया गया। खातून मरीज़ा का IP नंबर 3,36,592 था। 14 अक्टूबर की रात 11:30 बजे लड़की दौरान इलाज फौत हो गई, जिसके बाद हॉस्पिटल वालों ने डेथ सर्टिफिकेट जारी किया जिसका नंबर 3,515 है। बाद इन्हें 15 अक्टूबर तक इलाज करने के 6 लाख रुपए बिल हवाले किया गया। मुतवफ़्फ़ी के रिश्तेदारों ने
پریشانی کے عالم میں اس وقت مکمل بل کی تفصیلات کا مشاہدہ نہیں کیا۔ بعد ازاں انہوں نے جب بل کی تفصیلات کی جانچ کی تو یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے کہ لڑکی کی موت 14 اکتوبر کی رات ہوئی، جبکہ 15 اکتوبر تک اس کا علاج کیا جاتا رہا ہے اور علاج کرنے کے اخراجات بل میں شامل کیے گئے۔ متوفیہ کے رشتہ داروں نے ہاسپٹل کے پاس احتجاج کرتے ہوئے انصاف کا مطالبہ کیا۔ تو یہ تھا آج کا خبر نامہ۔ خبروں سے متعلق کمنٹ کے ذریعے آپ اپنے خیالات پیش کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ تو میں محمد اسلم حسین اب آپ سب سے اجازت طلب کرتا ہوں، تو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔